in Genesis 3 helps us to understand what happens on the cross. So help us, Lord, as we travel through this passage, as we travel through this book, that we would learn and understand who you are and value the gift of redemption that you have given each one of us. This we ask in Jesus' precious name. We're going through the book of Genesis. उत्पत्ति की किताब से हम अध्ययन कर रहे हैं. Genesis is the book of beginnings. उत्पत्ति की किताब जो है वो शुरुआत की किताब है, चीजों के उत्पन्न होने की किताब So है. we have seen till now where the world began, earth began, and how mankind came into existence. अभी तक हमने इस बात को देखा कि कैसे इस जगत की शुरुआत हुई, कैसे इस पृथ्वी की शुरुआत हुई और मानव को कैसे बनाया गया. While that may be the reality of our life, that there is an earth, that we are there on this earth, on this planet earth, there's other reality to our lives too. ये सच्चाई है कि पृथ्वी है, पृथ्वी में हम हैं, लेकिन इसके अलावा भी सच्चाई है. And that reality is the reality of sin or evil that is there in amongst us. और वो जो सच्चाई है वो है बुराई की सच्चाई या पाप की सच्चाई जो कि हमारे बीच में पाई जाती So है. this morning, under the title Dehumanizing of Humanity, let's look at chapter 3 closely and understand how sin has impacted our life. और आज की सुबह हम इस शीर्षक के अंतर्गत अर्थात कि इंसान का इंसान ना रह जाना, उसके द्वारा हम उत्पत्ति 3 अध्याय में जो पाप की सच्चाई बताई गई है उसके ऊपर गौर Now फरमाएंगे. this is that sermon where I don't have my preacher's satisfaction completely in it because I just couldn't, round it off or bring it to that conclusion that satisfies my heart. But nevertheless, this is God's word, and I bring it to you in that authority, and so receive it in that sense. ये सही बात है कि जब एक प्रचारक किसी प्रचार की तैयारी करता है तो उसके बाद में उसको एक संतृप्ति का एहसास होता है. वो संतृप्ति का एहसास इसमें नहीं था, लेकिन चूंकि ये परमेश्वर का संदेश है और उसके अधिकार के साथ में इसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और आप उसी अधिकार के साथ में इसको ग्रहण करें. Having traced the fatherhood of God in at the core of creation, और जैसे कि हमने अभी तक इस सृष्टि के केंद्र में या सृष्टि के मूल रूप में हमने परमेश्वर के पिता होने की बात को देखा है. that is God, Bible says, is the father of everything. कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर जो है वो सारी चीजों का पिता है. He is not like a father, he is the father. वो पिता जैसा नहीं है, वो पिता है. And we are his children, और हम उसके संतान हैं. his people, the people of God. हम उसके लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं. People purposed, placed, provided, protected, pacified in love. हम ऐसे लोग हैं जिनको उसने बड़े मकसद के साथ में रखा है, सारी चीजों का प्रबंध किया है और उसने हमें प्रेम में होकर के शांति प्रदान की है. Those of us joining new or those of us who have missed out on the previous sermons, go back and listen to them. You will understand what I'm getting at. और जो लोग आज हमारे साथ में नए रूप में जुड़ रहे हैं या जिन्होंने पिछले संदेश को नहीं सुना है, मैं गुजारिश करूंगा कि पिछले संदेशों को जाकर के सुनिए, तब आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे. But at the end of chapter 2 verses 25, लेकिन दूसरे अध्याय के 25वें आयत में अंत में, remember when Moses was writing Genesis, there was no demarcations of chapters and verses. तो आप इस बात को याद रखें कि मूसा यानी कि इस किताब का लेखक जो जब लिख रहा था तो उस समय ये बंटवारा नहीं था जैसे अध्यायों में और आयतों में अभी हम बंटवारे को देख रहे हैं, ऐसा बंटवारा नहीं था. So 2:25 goes well with chapter 3. इसलिए दूसरा अध्याय 25वीं आयत जो है वो लगातार चलती आ रही है, तीसरे अध्याय के साथ में वो जुड़ी हुई You थी. would notice that they were not naked and they were not ashamed. They were naked and they were ashamed. They were not ashamed. और हम 25वीं आयत में पढ़ते हैं कि वो नंगे थे लेकिन एक दूसरे से लजाते नहीं थे. Not ashamed because of their security of identity that they had in the love of God. और वो इसलिए नहीं लजाते थे, एक दूसरे से शर्म इसलिए महसूस नहीं करते थे क्योंकि उनकी पहचान जो परमेश्वर में थी उनको उसका बहुत अच्छे से एहसास था. Because they were in nearness, in close proximity to a covenantal God who was a powerful creator too. क्योंकि वो उस वाचा रूपी परमेश्वर के बिल्कुल करीब थे, उसके बहुत ही समीप थे. Their proximity to God was the point of their life. और चूंकि वो परमेश्वर के करीब थे, परमेश्वर के समीप थे और यही बात उनकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा था. Man was not called to be autonomous. He was not called to be independent. मनुष्य को इसलिए नहीं बनाया गया था कि वो अपने मनमर्जी के हिसाब से जिएगा या एकदम स्वतंत्र रूप से जिएगा.
So therefore, Eve was called on और dependence. कड़ी कड़ी ना खोले। ये कहा गया कि वो परमेश्वर पे निर्भर होकर के जिएगा। Now God had placed in chapter 2 verses 15 and 16, God had placed a tree in the middle of the garden. अगर दूसरे अध्याय 15-16 आयत में देखें तो वहां पे परमेश्वर ने बगीचे में एक पेड़ को लगाया And था God had asked them, don't eat of that one particular tree. You can eat of any other tree in the garden, but of that one particular tree, which was called the tree of good, the knowledge of good and evil, don't eat of that. और परमेश्वर ने कहा था कि जितने अलग और अन्य सारे वृक्ष हैं, इतने पेड़ हैं, उनके फलों को तुम खा सकते हो, लेकिन ये एक विशेष पेड़ है जिसका नाम बुरे और भले के ज्ञान का वृक्ष है, उसमें से मत खाना। Now there's no harm in knowing good and evil, right? अब ये सही बात है कि मतलब बुरे और भले के बारे में जान लेने में कोई बुराई नहीं है, But if you are to do that apart from the ultimate goodness, that is who God is, then what good and what evil would you know? लेकिन जो सबसे भलाई का जो सबसे अंतिम पैमाना है, जो एकमात्र पैमाना है, अगर हम उसको दूर हटा करके अपने हिसाब से अच्छाई और बुराई को जानेंगे तब गड़बड़ी होगी। Now this morning, I'm not going to go into depths of the origins of evil. आज की सुबह मैं इस बात पे चर्चा नहीं करूंगा कि बुराई की जड़ कहाँ है, बुराई की गहराई कहाँ तक है। I'm also not going to unravel the identity of the serpent that you see in this passage. और इस भाग में जिस सांप को आप देख रहे हैं उसकी असलियत क्या है, उसके बारे में भी मैं बात नहीं Because करूंगा। the author himself is unapologetic by keeping the identity quite hidden from us. और यहाँ पे चूंकि लेखक भी जो है वो अपने तरीके से इस सांप की सच्चाई हमारे सामने रख रहा है बड़े खुल्लम खुल्ला रूप में। While I do believe Adam and Eve are historical figures in this story, मैं इस बात पे विश्वास करता हूं कि आदम और हव्वा जो हैं वो यहाँ पे एक ऐतिहासिक पुरुष और स्त्री के रूप में दिखाए गए हैं। but as you read the Hebrew Bible and you understand, this chapter carries a lot of symbolic elements in it. लेकिन जब आप इब्रानी भाषा में, जिसमें कि ये किताब लिखी गई, जब आप उसमें पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि बहुत सारे प्रतीकों के द्वारा बातों को लिखा गया है, कहा गया है। So going on the route of symbols and interpreting all of that is not for today. Today, allow me to make your life easier and mine too by staying in the confines of the text that we have. और इसलिए आज की सुबह हम लोग किस प्रतीक का क्या मतलब है, क्या इसका संकेत है, उन सारी बातों के बारे में हम बात नहीं करेंगे। आप भी अपने दिल को शांत रखिए, मैं भी अपने दिल को शांत रखूं, और जो चीज जरूरी है हमारे लिए हम उसको सीखें। Because the writer has just one intention. क्योंकि लेखक का सिर्फ एकमात्र इरादा है, Not to tell the nation of Israel who are the first recipients, where is this evil coming from, what's the identity of the snake. What he's wanting them to understand is their present reality and connect it to what has happened in the history. और लेखक जो है वो इजरायलियों को ये नहीं बताना चाहता है कि अच्छा बुराई की शुरुआत कैसे हुई, किस तरीके से ये आई, उसके बारे में नहीं, बल्कि वो ये बताना चाहता है कि उनके जीवन की उस समय की जो सच्चाई है, जिस समय वो लोग थे, जिस जमाने में थे, उस सच्चाई के हिसाब से उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में बात कर रहा है। evil in your life right now? क्या आज अभी आप अपने जीवन में, आज के समय में बुराई को देखते हैं? There is no denying that, and that is what the author is saying. Okay, if you don't deny that reality, look at what I have to tell you, or listen to me in what I have to tell you about that reality that you have presently in your life. और जब आप बुराई की बात करते हैं तो आप उसको नकार नहीं सकते। हमारे बीच में, हमारे जीवन में बुराई है। उसी प्रकार से लेखक उस समय भी इजरायलियों को कहना चाह रहा था कि देखो तुम इस बात को नकार नहीं सकते, बुराई है, और इसलिए हमें बात करना पड़ेगा। So okay, the sermon starts now. संदेश अब चालू हो रहा है। There are two things that I will bring to you this morning from this passage. इस भाग से दो बातें आज की सुबह मैं आपके सामने रखूंगा। The doubt that made man slip, उस संदेह के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे जिसके कारण कि मनुष्य गिरा, and because of which too the distance that he feels between him and God. और दूसरी बात कि जो वो गिरा तो उसके कारण परमेश्वर और उसके बीच में जो दूरी का एहसास होता है, अलगाव का एहसास होता है, उसके बारे में Two बात things, करेंगे। the doubt, the distance. दो बातें, संदेह और संदेह के कारण दूरी। Now, the author says the serpent was most cunning of all wild animals that the Lord God had made. He said, that's the serpent, said to the woman, did God really say you can't eat from any tree in the garden? लेखक कहता है कि यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उनमें सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? Dehumanizing of the humanity starts with the replacement of God and his position
and his reality in our life. इंसान तब इंसान नहीं रहता जब वो अपने जीवन में परमेश्वर की सच्चाई को भुला देता है या उसको दूर कर देता है। This question is simple but convoluted. It is a question asked to create doubt in the heart of man. ये सवाल सरल तो है, लेकिन बहुत ही घुमाने वाले तरीके से, बहुत ही दूर तरीके से पूछा गया है कि जिसके कारण मनुष्य के मन में संदेह पैदा हो। What is the doubt? The doubt is on the goodness of God. संदेह क्या है? किस बात का संदेह है? शक या संदेह इस बात का है कि परमेश्वर की भलाई जो है वो वास्तव में भलाई नहीं है। Now, before we bite into this particular verse, this particular passage, let's make a few observations from what we have done till now. इसके पहले कि हम लोग इस आयत में से और ज्यादा गहराई में सीखे, अभी तक जो हमने सीखा है उसके बारे में विचार करें। Look at verse 25 of chapter 2. 25वीं आयत को देखिए, दूसरे अध्याय की। They were naked but not ashamed. लिखा है कि आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते ना थे। Now the word naked in verse 25, did I say 22? 25, 2:25 and 3:1, the word cunning in Hebrew are similar sounding words, arum and arumim. अगर आप 25वीं आयत में जो आपने नंगे शब्द के लिए पढ़ा है इब्रानी भाषा में, उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है, और तीसरे अध्याय में पहली आयत में धूर्त शब्द के लिए जो इब्रानी भाषा का इस्तेमाल किया गया है, दोनों शब्द जो हैं एक ही जैसे मिलते जुलते हैं। The fact that they were not ashamed runs much deeper than their exposed intimate parts. और जब ये कहा गया है कि वो दोनों नंगे थे पर लजाते ना थे, तो सिर्फ ये जो बात ऊपर ऊपर से हमें जैसा लग रहा है वैसा नहीं है, और भी ज्यादा गहरा मतलब था It इसका। shows their security. They were not vulnerable because of their relationship, close proximity with God. कहने का मतलब ये है कि वो एक दूसरे से डरते नहीं थे, एक दूसरे में अपने आप को एक दूसरे के सामने सुरक्षित महसूस करते थे, क्योंकि उनकी पहचान जो है वो परमेश्वर से जुड़ी हुई थी। It is their security in God that will be attacked now, and that is what is going to bring them shame. और अब जो हमला होगा वो अब उनकी ये जो सुरक्षा थी, परमेश्वर के साथ में जुड़े होने की सुरक्षा, इसी पर हमला होगा और इसी के कारण अब दिक्कत होगी। Their nakedness is going to be met with craftiness. अब उनका जो नंगापन है, नंगापन जो है उसकी मुलाकात होगी धूर्तता के साथ Now में। the word crafty is a neutral Hebrew word. It doesn't denote any positive or negative aspects to it as a simple word, as a use of a simple word. अब यहाँ पे हम हिंदी में धूर्त शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो तुरंत हमारे मन में नकारात्मक विचार आया था कि ये गलत, जो अगर कोई व्यक्ति धूर्त है तो वो नकारात्मक है या गलत है। लेकिन हिब्रू भाषा में, इब्रानी भाषा में धूर्त शब्द का मतलब उससे ये नहीं पता चलता है कि ये इसमें नकारात्मक वाली बात है या सकारात्मक वाली बात है। But the context decides that. The use of the craftiness by the particular creature is going to decide how this craftiness is going to work. And in our passage, we understand this craftiness is going to be manipulative, and it is going to cast a doubt in the mind and heart of the man. और अगर यहाँ पे चालाक शब्द का इस्तेमाल करें हम लोग, तो चालाक जो है कई बार हम उसको सकारात्मक या सही रूप में भी लेते हैं, गलत रूप में भी लेते हैं। तो यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया धूर्त या चालाक, तो जो संदेश दे रहा है या जो बात कह रहा है या जो लिख रहा है, वो जिस संदर्भ में या जिसके बारे में बात करते हुए लिख रहा है, उसको समझ करके हमें समझना होगा कि हाँ वो सही रूप में कह रहा है या गलत रूप में। So the author wants us to know that sin or evil is the rebellion in one's heart. अब यहाँ पे लेखक इस बात को कहना चाह रहा है कि पाप जो है वो परमेश्वर के प्रति एक बलवा है जो कि किसी के दिल में उठता है। The serpent is the voice of the devil himself. यहाँ पे सांप की जो आवाज है वो शैतान की खुद एक आवाज है, And it is dripping with venom of rebellion against God. परमेश्वर के खिलाफ बलवा से करने वाले उस आत्मा के साथ में ये भरा हुआ है। It's the rebellion against the authority, that is the rulership and the goodness of God, which cannot stand apart from each other. परमेश्वर के शासक होने या परमेश्वर के राजा होने और परमेश्वर की भले होने, इन दोनों के खिलाफ बलवा की बात होती है पाप। और परमेश्वर के शासक होने और परमेश्वर की भलाई को हम इन दोनों चीजों को अलग नहीं कर सकते। Do you notice in your text, the devil doesn't want them to deny the existence of God. क्या आपने गौर किया कि इस भाग में शैतान जो है वो इस बात की कोशिश नहीं कर रहा है He is कि not- ये लोग परमेश्वर के अस्तित्व का इनकार कर दें। He is not cultivating atheists here. यहाँ पे वो अनीश्वरवादी या परमेश्वर का ना होना, इस बात पे विचार करने के बारे में कोई बात नहीं कह रहा The है। majority of the world's population believes in God.
existence of God. अगर आप दुनिया के अधिकतर लोगों की बात करें तो अधिकतर लोग परमेश्वर के अस्तित्व पे या परमेश्वर के होने पर विश्वास करते हैं। Atheism is a sliver of that population. और अगर आप देखें जो लोग परमेश्वर नहीं है ऐसा कहते हैं उनकी बहुत छोटी सी संख्या है। The devil is not interested in making you deny the existence of God, but the devil is interested in casting a doubt in your heart whether this God of the Bible is a good God or not. शैतान इस बात में दिलचस्पी नहीं रखता है कि आपको वो अनिश्वरवादी बना दे या ये कह दे कि हाँ आप परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते। वो कहता है कि आप परमेश्वर पे विश्वास करो, लेकिन आपके मन में वो संदेह डालता है कि क्या ये वास्तव में बाइबल का जो परमेश्वर है वो अच्छा है भी या नहीं। He doesn't want you to deny the existence of God, but he wants you to believe in the existence of God and rebel against this very existence of God. वो चाहता है कि वो ये नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के अस्तित्व पे विश्वास ना करें। वो कहता है कि आप विश्वास तो करो, लेकिन विश्वास करने के साथ साथ में वो परमेश्वर के खिलाफ आपको भड़काता भी है। So the question is geared to make Eve think, how can a good God withhold anything and prohibit anything to good creatures like us? और यहाँ पे जो सवाल जो संदेह डालना चाहता है हव्वा के मन में शैतान, वो ये है कि अरे परमेश्वर अपने आप को अच्छा तो कहता है, लेकिन ये अच्छा परमेश्वर हम जैसे प्राणियों से जिसको उसने बनाया है उनसे किसी अच्छी चीज को कैसे रख छोड़ सकता है, क्यों नहीं देता है। The identity of the serpent is classified in this passage. शैतान की जो पहचान है उसको बहुत ही खोल करके सामने नहीं रखा The गया writer है। is not very keen in helping us understand who the serpent is and what is his role, whatever. But what is very clear is, read verse 1. It says, the beast crafty than other beasts of the field that the Lord God made. So the serpent here is a creation of God. यहाँ पे लेखक जो है वो ये नहीं बताना चाह रहा है खोल करके कि सांप क्या है, कैसे आया, उसके बारे में नहीं, बल्कि एक बात वो बड़े स्पष्ट रूप से कहता है पहली आयत में कि यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। इसका मतलब कि सांप को भी, सर्प को भी परमेश्वर ने ही बनाया था। By identifying it to be a creature, अब जब इस सांप को प्राणी कह रहा है लेखक, तो the author says the idea that the two forces, that is the force of good and evil coexisting eternally, is not a biblical principle at all. तो इसलिए लेखक इस बात को बताना चाह रहा है कि दुनिया में एक विचार जो फैलाया जाता है कि दो ताकतें हैं, एक बुरी ताकत और एक अच्छी ताकत, वो बाइबल का विचार नहीं है। God exists eternally. परमेश्वर जो है वो हमेशा हमेशा से विद्यमान है। Everything else is his creation. हर एक चीज उसकी रचना है। Therefore, evil does not run parallelly eternally with goodness. और इसलिए बुराई जो है वो जब से परमेश्वर है तब से नहीं है। Evil therefore will have an expiry date. इसलिए बुराई जो है एक ऐसा समय आएगा जब खत्म होगी। That is why we make movies where goodness always trumps or triumphs over evil. और इसलिए हम लोग फिल्में बनाते हैं जहां पे हम हमेशा सच्चाई की या अच्छाई की जीत दिखाते हैं। What we call as sin is rebellion of one's heart against God. जिसको हम पाप कहते हैं वो वास्तव में एक व्यक्ति के दिल का वो विद्रोह है, दिल का वो बलवा है जो परमेश्वर के खिलाफ करता I है। want you to see this. I don't want you to see sin as mere force. I want you to see as a rebellion in one's heart. It's the problem of a relationship that one has with God, that which you and I would call sin. मैं चाहता हूं कि आप पाप को एक ताकत करके सिर्फ ना देखें कि जिसके आगे आप मजबूर हो जाते हैं, बल्कि आप इसको देखें कि ये एक किसी व्यक्ति के दिल की हालत है। मतलब परमेश्वर के बीच में और एक व्यक्ति के बीच में जो रिश्ता है, उस रिश्ते की जो हालत है वो पाप के द्वारा दिखाई पड़ती It's है। the use of the freedom with which we are created, used to dethrone God, or as Carson would say, ungod God, is what sin is all about. तो ये एक ऐसी स्थिति है जहां पे पाप एक ऐसी स्थिति जहां पे हम परमेश्वर को परमेश्वर नहीं रहने देते, परमेश्वर को हम उसके सिंहासन से उतार देते हैं। So when you de-God God, जब आप परमेश्वर को परमेश्वर जैसा नहीं स्वीकार करते, you dehumanize man. तो आप इंसान को अमानवीय बना देते हैं, When- मसीह जैसा बना When देते हैं। God, the true one and true living God, is not the God of your life, you will reduce your life into a dehumanized manner.
अगर एक सच्चा और जीवित परमेश्वर हमारा परमेश्वर नहीं है तो हम जीवन को अमानवीय बना देंगे, उसमें मानवता नहीं होगी। Sometime back, I referred to this. I said, when someone does something dastardly, something really horrific, कुछ समय पहले मैंने ऐसे कहा था कि अगर मान लीजिए किसी ने कोई बहुत ही भयानक गलत काम किया है, for example, the Nirbhaya case, उदाहरण के लिए जो निर्भया केस हुआ था, the Hindi word used was haywaniyat. हिंदी शब्द में हमने इसके लिए, इस खतरनाक और गलत काम के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया था वो हैवानियत किया था। You know what the word haywaniyat means? हैवानियत शब्द का क्या मतलब है आपको पता है? Beastly, animal like. पशु जैसा। So and remember, these are human beings. So if that particular set of human beings could do something as haywani as that, then every other human being has the capacity to do the same. इस बात को याद रखें कि अगर वो लोग जिनको हम इंसान के रूप में देखते हैं वो भी अगर जानवर जैसा व्यवहार कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम सबके अंदर ऐसी संभावना है कि हम भी जानवरों जैसा व्यवहार कर सकते हैं। So what is sin? It is the allurement in our life to dethrone God and place ourselves as God, and by doing so dehumanize our own self. तो इसलिए पाप क्या है? पाप एक ऐसा लालच है, एक ऐसा खिंचाव है जिसके कारण कि हम परमेश्वर को उसकी गद्दी से हटा करके खुद उस गद्दी में बैठ जाते हैं और उस गद्दी में बैठ करके हम खुद ही अपने आप को जानवर जैसा बना लेते हैं। So the first question that the serpent is asking to Eve is attacking or casting a doubt on the very authority of who God is. और इसलिए सांप जो पहला सवाल हव्वा से पूछ रहा है उस सवाल के द्वारा वो परमेश्वर के उस अधिकार के ऊपर ही सवाल खड़ा कर दे रहा है। It is asking the question, did really, I mean, it's a sneer, it's a snarky question. Did God really, I mean, does this make sense to you at all? I mean, can God really say this? Like, और ये एक व्यंग्यात्मक सवाल है जहां पे परमेश्वर को छोटा दिखाने जैसा कि अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मतलब क्या ये परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर, अपने आप को इतना अच्छा बताने वाला परमेश्वर ऐसा कुछ कह सकता है? By questioning God's authority, Eve now has the picture of a God who is rigid, harsh, and stifling and suffocating. अब जब इस प्रकार से सवाल सामने आया तो हव्वा के मन में ये विचार आया कि ये परमेश्वर जो है वो बहुत ही कठोर दिल का परमेश्वर है, ये परमेश्वर जो है कंजूस परमेश्वर है, ये चीजों को हमारे हिसाब से होने नहीं देता। The authority, the rulership of God and the freedom of man cannot coexist is what she is now thinking to herself. और वो अपने मन में ये सोचने लगी है कि परमेश्वर और हमारी जो स्वतंत्रता है दोनों अब एक साथ नहीं रह सकते। What is Satan doing? He's attacking the fatherhood of God. He's attacking the DNA of man, that is the dependence of man on God for survival. अब शैतान क्या कह रहा है? शैतान जो है वो परमेश्वर के पिता होने की जो सच्चाई है उसके ऊपर हमला कर रहा है और वो इस प्रकार से मनुष्य को अमानवीय बना रहा है। By asking, did God? He's basically asking the question, who is this God? और जब वो कह रहा है कि क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा तो एक तरीके से कह रहा है कि मतलब ये कौन है परमेश्वर? भाई ये कौन है जो हमको बताता है कि हम क्या करें? That's the question here. We have a problem with authority. Do you see that? और यही सवाल है कि कौन है ऐसा परमेश्वर जो हमको ऐसा करके बोलता है। और अगर हम देखें अपने जीवन में तो जहां पे अधिकार के अधीन होने की बात आती है हमें बड़ी दिक्कत होती है। We defy authority at heart's level. हम अपने दिल के स्तर से देखें या किसी भी तरीके के स्तर से देखें, अधिकार में तो हम रहना नहीं चाहते। At a basic level, we are all anti-establishments. अगर मूल रूप से देखा जाए, नींव में जाकर के देखा जाए तो हम सभी जो हैं वो अधिकार के खिलाफ जाना चाहते हैं। हमारी फितरत में नहीं है कि हम किसी के नीचे रहें। What we see in Genesis 1 and 2 is the establishment of this authority through the acts of love for the flourishing of mankind. Eve has missed that picture completely. अगर उत्पत्ति के पहले 2 अध्याय में देखें तो वहां पे हम इस बात को देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने प्रेम में हो करके मनुष्य के लिए, मानव जाति के लिए सब कुछ प्रबंध किया, अधिकार का प्रबंध किया। There is this thirst for autonomy.
यहाँ पे एक ललक है, एक चाहत है आजादी की, which has which when thought about in the context of God's authority then feels stifling. और जब आप इसको हम परमेश्वर के अधिकार के संदर्भ में देखते हैं तो हमको ये अधिकार जो है ऐसा लगता है जैसे कि वो हमारा गला दबा रहा हो। And when we say God's authority, it doesn't come apart from the word of God. Word of God's the stamp and the seal over God's authority. और जब हम परमेश्वर के अधिकार की बात करते हैं तो परमेश्वर का अधिकार कहाँ पाया जाता है? परमेश्वर के वचन में पाया जाता है। उससे अलग होकर के हम परमेश्वर के अधिकार को नहीं In देखते। chapter 2:16, the word which prohibited man from eating of the tree of the knowledge of good and evil is the word which created the heavens, the earth, the mountains, the trees, the land, the sea, and everything in it, including man and woman. And this is the word which said, it is indeed good when the creation was complete. And this is the word which entered man and woman into rest. And this is the word which prohibits man from eating of that one particular tree in the garden. जिस शब्द के द्वारा, जिस वचन का इस्तेमाल करके परमेश्वर ने मनुष्यों को रोका कि इस पेड़ के फल को ना खाना, उसी वचन से, उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, उनको बनाया, पेड़ को बनाया, पर्वत को बनाया, नदियों को बनाया, सारी सृष्टि की उसने रचना की। इसी शब्द के द्वारा वो सारी चीजों का प्रबंध करता है, इसी शब्द के द्वारा जो है वो मनुष्यता को स्थिर करता है। His authority is the ecosystem in which humanity will flourish. उसने जो अधिकार रचा है, जो अधिकार दिया है, उसी माहौल में ढल करके मनुष्य फल और फूल सकता है। His rule is to our benefit. उसका जो शासन है वो हमारी भलाई के लिए ही है। And what sin does is it rebels against this benefit. और पाप क्या करता है कि पाप जो है वो इस भलाई के प्रति बलवा करता है। Derek Kidner says, when he talks about the tree, and I quote, as it stood, that tree, as it stood prohibited, it presented the alternative to discipleship, to be self-made, resting one's knowledge, satisfaction, values from created world in defiance of the Creator. और डेरेक क्रीनर करके एक बड़े विचारक हैं, वो कहते हैं कि जब वो पेड़ जो है वो वहां पे निषेधात्मक रूप से या चीजों को मनाही करने के लिए रखा गया था, तो उसकी एक संभावना ये भी है कि लोग अपने हिसाब से अपनी आजादी परिभाषित कर लेते, अपने हिसाब से अपने जीने का गुण जो है वो परिभाषित कर लेते, अपने हिसाब से खुशियों को परिभाषित कर लेते। To demand and exist from the authority and the rulership of God, to demand and exit from the authority and rulership of God, परमेश्वर के अधिकार से बाहर जाने की मांग करना, in wanting freedom, और आजादी की मांग करना, is like a fish wanting to jump out of the water and saying freedom, freedom. ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि मछली जो है वो पानी से बाहर निकलने की मांग कर रही हो और कह रही हो कि ये आजादी मिल गई, Because आजादी मिल it गई। is authority, it is true loving authority and rulership that brings freedom. क्योंकि ये सच्चाई से भरी हुई, प्रेम से भरी हुई प्रेम से भरी हुई एक ये अधिकार की बात है, परमेश्वर का अधिकार है जिससे ही सच्ची आजादी आती है। As someone said, freedom is not the permission to do what you feel like, it is the power to do what you ought to do. जैसा किसी ने कहा कि आजादी इसमें नहीं है कि जैसा मेरा दिल करे मैं वैसा कर लूं, बल्कि आजादी इसमें है कि जैसा करना चाहिए वैसा मैं करूं। As an eternal father tells his children, this is how you are to go. This is for you for life. अनंत काल के पिता होने के रूप में परमेश्वर कह रहा है कि आपको ऐसे जीवन जीना होगा, आपको ऐसे ही आगे बढ़ना होगा। He is the Father in heaven. He has the right over us. He is our creator God. He needs to tell us how we are to flourish. वो स्वर्ग का हमारा परमेश्वर है, वो हमारे ऊपर एक अधिकार है, वो हमें बताता है कि फलने फूलने के लिए हमें कैसे जीना होगा। It is the rulership of God that protects man from death. परमेश्वर का ये शासक होना या परमेश्वर का ये शासन ही है, अधिकार ही है जो कि मनुष्य को मौत से बचाता है। It has guarded him from falling away. That is what chapter 2 is all about. दूसरा अध्याय इसी बात को बताता है कि वो कहीं हट करके अपने आप को नष्ट ना कर ले, उससे परमेश्वर का शासन हमें बचा के Now रखता you है। can't see the authority of God apart from the goodness of God. You have to see the authority, the rulership of God alongside the goodness of God. अब जब हम परमेश्वर की बात करते हैं तो परमेश्वर के शासन की बात करते हैं
हैं, उसके अधिकार की बात करते हैं, तो उसको हम भलाई से अलग करके नहीं देख सकते। So in targeting the authority of God, the serpent is making a direct attempt to defy or to delink God from any goodness. और इसलिए जब वो शासन पे सीधा हमला करता है शैतान, तो वो परमेश्वर की भलाई के साथ में जो रिश्ता है उसको वो तोड़ना चाह रहा है। So he said to the woman, the serpent, सांप ने स्त्री से कहा, did God really say? क्या परमेश्वर ने वास्तव में ऐसा कहा? You know what is serpent doing? यहाँ पे सांप क्या कर रहा है? He's using his craftiness. वो अपनी धूर्तता का इस्तेमाल कर रहा है। He's maximizing the prohibition वो अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए जिस चीज की मनाही की गई है उसको बहुत बड़ा करके दिखा रहा है। while God said one tree to be not eaten of जबकि परमेश्वर ने सिर्फ एक ही पेड़ का फल खाने के लिए मना किया and था। had told that you can eat of any other tree in the garden. और जबकि परमेश्वर ने कहा था कि तुम बाकी सारे पेड़ के किसी भी पेड़ के फल को खा सकते What हो। is the devil doing? यहाँ पे शैतान क्या कर रहा He's है? maximizing the prohibition. वहां यहाँ पे शैतान जो है एक छोटी सी बात को जो मना किया गया है उसको बहुत बड़ा करके And in दिखा रहा है। maximizing the prohibition, he removes the permissions. और जब वो इतना बड़ा करके दिखा रहा है इस मनाही की बात को, तो जो अनुमति की बात है उसको वो हटा दे रहा है। Now look at it. A God, My mother if you were to look through Satan's eyes, is a rigid God, right? He has created man, put him in the garden, created all the trees, put fruits on the trees, placed one tree which he's not supposed to eat. But according to the devil, it seems that God doesn't want them to eat of any tree in the garden. Isn't it like that for us? not high. We have legitimate means of enjoying our life in the lap of the nature, but we look for that one way, which might be the forbidden way, to call it enjoyment, entertainment, and whatnot, and whatever. शैतान की नजरों से इस वाक्य को देखने की कोशिश करिए। शैतान जो है वो परमेश्वर को ऐसे देख रहा है कि परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया, इंसान को भी बना दिया, और अब इंसान से कह रहा है कि इतने सारे पेड़ हैं और उसमें से एक पेड़ के फल को ना खाना, लेकिन वो ऐसा इसको देख रहा है कि जैसे कि किसी पेड़ के फल को ना खाना। अब ऐसा ही हमारे साथ में भी होता है कि हम अपने जीवन को ऐसा देखते हैं कि परमेश्वर ने जो चीजें बनाई हैं शायद वो हमारे भलाई के लायक नहीं है, जबकि वही हमारे भलाई के लायक है। हम सोचते हैं कि जो तरीका मना किया गया है, जो सही नहीं है, उसी से हमें आनंद मिलेगा, उसी से हमें संतृप्ति मिलेगी। Because sin begins with the notion that God is a party spoiler. क्योंकि पाप जो है वो इस विचार के साथ में पैदा होता है कि परमेश्वर जो है वो रंग में भंग डालने वाला या मौज मस्ती पे हमारे कैंची चलाने वाला है। Isn't it? क्या ऐसा नहीं है? I can't, growing up, we were not allowed to go to a movie theater. We were never allowed to watch a movie. I have never smoked in my life. I have never taken drinks till some time back. I have lived a very, very holy life. जब मैं बड़ा हो रहा था तो हमारे माँ बाप ने हमें टीवी नहीं देखने दिया, फिल्म देखने के लिए जाने नहीं दिया, सुट्टा नहीं लगाने दिया, पीने भी नहीं दिया। अभी जब मैं आजाद हो गया तब मैंने पिया। So I still remember, because we were not allowed to watch, there was a time when our parents, they don't know about this, so this is their time to know these things. They went to Kerala, leaving their good children at home. तो हुआ ऐसा कि चूंकि जब ये लोग घर में होते थे माँ बाप, तो हम लोग टीवी देखने को मिलता नहीं था, तो जब ये लोग केरल गए तो हम लोग बड़े अच्छे बच्चे के रूप में घर पे थे। So we went out and rented out a TV and a VCR. In those days, no laptops and internet. तो उस समय इंटरनेट और लैपटॉप जैसा कुछ था नहीं, तो हम लोग गए बाहर से, हम लोग किराए पे VCR लेकर के आए। And our first movie was Kala Pani. और पहली फिल्म जो हमने देखी वो काला पानी देखी थी। I mean the color movie. So I don't know why I said this, but you see, God always felt stifling. Like, वो मजा नहीं आ रहा है. I mean, everything was a clamped down and a lockdown. God of lockdown. तो मैंने इस बात को इसलिए ऐसा कहा कि
परमेश्वर जो है हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे वो हमारी खुशियों को दबाने वाला है। एक जैसा लॉकडाउन जैसा माहौल है, सारी चीजों के ऊपर उसने मतलब कब्जा जमाया हुआ है। God seems someone who is after our joy, like he wants to snatch it away at every point. और ऐसा लगता है जैसे कि परमेश्वर जो है हमारी खुशियों के पीछे पड़ा है, खुशियां हमसे छीनना चाहता है। सब पार्टी में जाते हैं, मैं क्यों नहीं जा सकता? सब दारू पीते हैं, मैं क्यों नहीं पी सकता? सब सुट्टा मारते हैं, मैं क्यों नहीं पी सकता? सब पॉर्न देखते हैं, मैं क्यों नहीं देख सकता? You see, it always seems like God is after some kind of joy that I want, and that is dehumanizing effect on us. और इसलिए हमें जब ऐसा लगता है कि जो मौज मस्ती हम करना चाहते हैं, जो आनंद उठाना चाहते हैं, परमेश्वर उसी के पीछे पड़ा है। अगर हमको ये बात एहसास हो रही है बहुत ही ज्यादा, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को हैवानियत की तरफ ले जा रहे हैं। Simple prohibition here in the garden was to not eat of that one tree. The prohibition in the garden was not to eat of that one tree. यहाँ पे जो मनाही की बात थी, जिस बात के लिए मना किया गया था, सिर्फ साधारण शब्दों में सिर्फ एक पेड़ के फल को खाने के लिए मना किया गया Even था। that prohibition is out of the goodness of who God is. और ये भी जो manahi की परमेश्वर ने, वो भी परमेश्वर भला है, परमेश्वर की भलाई के कारण ही उसने ये मनाही की। That is, if you were to eat of the tree, you get nowhere. तो इसका चूंकि अगर वो उस पेड़ के फल को खा लेते तो जो जानना जिस तरीके से नहीं जानना चाहिए था वो जान जाते। Because the ultimate goodness lies in me. चूंकि परमेश्वर के हिसाब से उसके कहने का मतलब ये है कि जो वास्तविक सच्चाई है वो सिर्फ परमेश्वर के अंदर ही है। When I say no to you, it is not for me, but for you and your goodness. परमेश्वर इस बात को उन्हें बताना चाह रहा था कि जब मैं ना कह रहा हूं तो ये मेरे लिए भलाई की बात नहीं है, बल्कि तुम्हारी भलाई की बात है। Sex outside marriage is a no because it is not adding anything to God, but adding to you and your humanity. शादी के बाहर जाकर के शारीरिक संबंध स्थापित करना आपकी भलाई के लिए है, मेरी भलाई के लिए नहीं है। परमेश्वर इस बात को बताना चाह रहा है। Without God's goodness, you have no measure of goodness, right? परमेश्वर के भलाई के मानक के बिना, उस मीटर के बिना भलाई का कोई मानक नहीं है हमारे पास। Now, if you and I go on a pursuit of finding good and evil on our own, what basis do we have to find that? अब अगर मान लीजिए हम एक तलाश पे निकल पड़े कि हम अपने हिसाब से क्या अच्छा है क्या बुरा है उसकी परिभाषा बनाएंगे, तो कोई पैमाना हम बना पाएंगे क्या? Lewis has a very good illustration, a simple one. C.S. Lewis. C.S. लुइस जो एक अच्छा उदाहरण बताते हैं, एक साधारण उदाहरण He बताते says हैं। you can't call a line crooked unless you know what a straight line looks like. C.S. लुइस कहते हैं कि किसी लाइन को आप टेढ़ा तब तक नहीं कह सकते जब तक कि आपने सीधी लाइन ना देखी हो या उसके बारे में ना जानते हो। Look at verse 15 and 16 of chapter 2. If you have your Bibles, click there or reach there. Lord took man and placed him in the Garden of Eden to work and watch over it. उत्पत्ति 2:15-16 आप पढ़ लें अपने बाइबल में। लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। And he says, you are free. और परमेश्वर कहता है कि आप आजाद हो। Now what is the devil trying to say? अब शैतान क्या करना चाह रहा You're है? not free, man. तुम अभी फ्री नहीं हो, तुम आजाद नहीं हो। He said that to you. How dare he? उसने ऐसा कहा, कैसे कह सकता है वो? Don't you have some value? क्या तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है? Eve, you were the beautiful creation, the crown of creation or whatever, and man was singing for you. And God dared tell you to not eat of the tree. और हव्वा से मानो वो शैतान ऐसे कह रहा हो कि अरे हव्वा आप कितनी खूबसूरत हो, आप तो सृष्टि के शिरोमणि हो, अरे ये आदमी भी जो है तुम्हारे लिए गाना गाता है। और कैसे परमेश्वर ऐसे मत कर सकता है कि वो तुमसे कह सकता है कि तुम इस पेड़ के फल को ना खाना। In 1 Timothy 4:4, for everything God created, everything created by God is good and nothing is to be rejected and is to be received with thanksgiving. पहला तीमुथियुस 4:4 में हम देखें तो वहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जो कुछ बनाया सब अच्छा बनाया, सबको धन्यवाद के साथ में स्वीकार किया जाना चाहिए। See, the problem is not with the fruit in the tree. आप इस बात को देखिए कि समस्या उस पेड़ के फल में नहीं है। Even that is good as God created it. और जैसे कि परमेश्वर ने उसको बनाया वो अच्छा है। What is good is the disobedience of God's word, his prohibitory orders from being partakers of that fruit on that tree.
जो अच्छा नहीं है वो ये है कि उस पेड़ के फल में जिसको मनाही किया गया था उसको खा करके उसकी अनाज्ञाकारिता में भागी हो जाना। Is God good when he gives everything? That's true. That stands true. ये सही बात है कि जब परमेश्वर सब कुछ देता है तो परमेश्वर अच्छा होता है, भला होता है। Is God good when he withholds things? लेकिन सवाल ये है कि जब परमेश्वर चीजों की मनाही करता है हमारे जीवन में या चीजों को रोक लेता है तो क्या तब भी परमेश्वर अच्छा है? Because he is God and I am man. क्योंकि वो परमेश्वर है और हम मनुष्य हैं। Psalm 33:5 says, earth is full of steadfast love. In some translation, it translates it as goodness of God. The earth is full of the goodness of God. भजन संहिता 33:5 में लिखा हुआ है कि पृथ्वी जो है परमेश्वर की भलाई से भरपूर है। His providence sustains human life. उसका जो प्रबंध है उसी के कारण मानव जीवन फलता फूलता The है। Lord is good to all. परमेश्वर जो है वो सबके लिए भला है। His tender mercies are over all. उसकी करुणा जो है वो सबके ऊपर है। It is the loyalty to the goodness of God that he wants. वो उस भलाई के प्रति वफादारी को चाहता है। Because it is that loyalty that brings flourishing in the life of man. क्योंकि वही वफादारी जो है वो हम मनुष्यों के जीवन में फलने फूलने की बात को लेकर के आती है। Whatever you say, love requires loyalty. Love without loyalty is not love. आप कुछ भी कह लें, अगर प्रेम में वफादारी नहीं है तो वो प्रेम नहीं है। The nature of love is law. अगर प्रेम के स्वभाव की बात करें तो प्रेम स्वभाव से ही नियम कानूनों से बंधा होता है। Love is not to be just used as a feeling or a fluffiness or frothiness. प्रेम जो है सिर्फ वो एक भावना नहीं होता, एक एहसास नहीं होता। Love is love when there is loyalty and utmost loyalty. प्रेम तब होता है जब वफादारी होती है, असली वफादारी होती है। The trees constantly reminded them that they were not their own and not on their own, but they were who they were to be in God. वो पेड़ हमेशा आदम और हव्वा को ये याद दिला रहा था कि वो खुद अपने नहीं हैं, खुद अपने दम पर नहीं हैं, वो अगर हैं तो हैं वो उस पेड़ के बनाने वाले परमेश्वर के कारण। It reminded them that there was abundance and flourishing in the abundance of the goodness of God. वो पेड़ उन्हें इस बात की याद दिला रहा था कि अगर उनके जीवन में किसी चीज की आनंद की भलाई की भरपूरी है तो वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के भलाई की भरपूरी के There was कारण है। abundance and flourishing of life inside the garden, not outside the garden. अदन के बगीचे के अंदर आनंद की भरपूरी थी, फलने फूलने की भरपूरी थी, बाहर नहीं था। God wanted them to look beyond the trees, the canopy that the trees were making, beyond it to the highest good, that God himself. परमेश्वर चाहता था कि वो पेड़ों की जो छाह है, पत्तियों का जो एक गुच्छा है, उससे ऊपर उठ करके परमेश्वर के भलाई की तरफ देखें। Do you see the phrase 2:15, chapter 2:15, watch and work? दो अध्याय 15वीं आयत में वहां पे एक वाक्य का हिस्सा इस्तेमाल किया गया है जिसमें लिखा है कि वो काम करे और उसकी रक्षा करे। The watch and work comes along with the prohibitory orders of God. ये जो वाक्य का हिस्सा इस्तेमाल किया गया है कि वो काम करे और उसकी रक्षा करे, वो परमेश्वर की मनाही के साथ साथ दिया गया है। Now what you need to know is that their watch and work was an experience of goodness of God. अब जो बात हमें जानना है वो ये कि जब यहाँ पे काम करने और अदन के बगीचे की रक्षा करने की बात है तो इसका मतलब ये है कि ऐसा करते करते उन्हें परमेश्वर की भलाई का एहसास करना था। If you see only a heart of rigidity in God prohibiting woman and man from eating of the tree, then you do not know the heart of God in creation. You do not know him as your father. अगर आप परमेश्वर के दिल को सिर्फ इसी बात पे नाप देते हैं कि अरे उसने तो पेड़ के फल को खाने के लिए मना किया था तो इसका मतलब है कि हम परमेश्वर के उस पिता होने के दिल को नहीं जानते। The prohibition highlights the closeness, the proximity of God to man. जब यहाँ पे मनाही की बात की जा रही है तो परमेश्वर के साथ में जो करीबीपन होना चाहिए, जो समीपता होनी चाहिए, उस बात को लेखक बड़े बखूबी से हमारे सामने But with रखता the है। question, man sees the distance between him and God. But with the question, because of the question, man sees the distance between him and God. लेकिन जब सवाल उसके सामने रखा जाता है तो उस सवाल में होकर के वो परमेश्वर के बीच में और अपने बीच में एक दूरी देखता है। Verse 2, look at woman's response. She responds and tells the serpent, we may eat the fruit from the trees in the garden, but about the fruit of the tree in the middle of the garden, God said.
you must not eat it or touch it or you will die. दूसरे आयत और तीसरे आयत में देखिए, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे. You know, when you read this passage, you should observe the use of Elohim, alone. अब जब इस भाग को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे इब्रानी भाषा में इलोहिम शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है उसको हम गौर करें. Chapter 2, 15, 16, it is Yahweh Elohim. दूसरे अध्याय और 15वीं 16वीं आयत में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया परमेश्वर के नाम के लिए, वहां पे यहोवा इलोहिम शब्द का इस्तेमाल किया गया. All loving God and all powerful God is telling them that. और सर्व प्रेमी परमेश्वर, जो सर्व शक्तिशाली परमेश्वर है, वो इनको ये बात कह रहा है. By dropping the covenantal name which expresses the love of God, man is expressing his furtherness away from God. और यहाँ पे परमेश्वर के लिए जब मनुष्य सिर्फ इलोहिम शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, यहोवा शब्द का इस्तेमाल उसने यहाँ नहीं जोड़ा है, तो वो इस बात को दिखा रहा है कि वो पहले ही परमेश्वर से दूर हो चुका है. A God who prohibits man from eating of the tree is not a rigid God. It's not a faraway God, but is a covenantal God. He has promised man that this is for your flourishing. This is for your multiplication. This is for you and I am with you. फल खाने की मनाही करने वाला जो परमेश्वर है, वाचा रूपी परमेश्वर जो है, वो प्रेम से ये बात कह रहा है, मनुष्य की भलाई के लिए बात कह रहा है. वो इसलिए ऐसा नहीं कह रहा है कि वो बड़ा कठोर है या मनुष्य को बना करके उनसे दूर हो जाने वाला परमेश्वर, ऐसा नहीं है, बल्कि वो उनकी भलाई के लिए बात कह रहा है. The trees should have brought God closer to them. उस पेड़ के कारण परमेश्वर जो है मनुष्यों के और करीब आ जाना चाहिए था. Their desire for the trees, their desire for God should have outdone their desire for the tree. उनकी जो अभिलाषा है, जो चाहत है परमेश्वर के लिए, वो पेड़ के लिए जो चाहत है, उसके फल के लिए जो चाहत है, उससे बड़ी हो जानी चाहिए. A Dutch theologian says, Bavinck, God wired you for so much more. God created you for himself and you will not find rest until you rest in the Father's heart. बाविंग करके एक डच विचारक हैं और वो कहते हैं कि परमेश्वर ने इंसानों को, हम सभी को उसके लिए बनाया है. हम तब तक अपने दिल में चैन नहीं पाएंगे जब तक हम परमेश्वर में चैन नहीं पालेंगे. Look at her reply. यहाँ पे जो जवाब है उसको देखिए. Verse 2. दूसरी आयत. What is she doing? क्या कह रही है वो? She minimizes the loving provision. यहाँ पे परमेश्वर ने प्रेम से भरा हुआ जो प्रबंध किया, जो व्यवस्था की है, उसको बहुत छोटा करके बता रही है. Instead of saying free to eat of any tree, she says she clips it to just trees in the garden. Any tree, every tree is missing. यहाँ पे हव्वा इस बात को नहीं कह रही कि परमेश्वर ने कहा कि सब फल खा सकते हो सिर्फ एक छोड़ करके. वो कह रही कि हाँ, पेड़ों का इस्तेमाल कर रही है. Then she maximizes the prohibition. लेकिन जो चीज परमेश्वर ने मना की थी उसको बहुत बड़ा करके बता रही है. And in maximizing, how does she maximize the prohibition? और परमेश्वर ने जो चीज मना की है उसको कैसे बड़ा करके हवा बता रही है? When did God say you should not touch? वो कह रहे हैं कि तुम उसको छूना नहीं. अगर आप बाइबल में देखें, परमेश्वर ने कब कहा कि छूना नहीं? So she's adding to something. So she's maximizing the prohibitions. तो वो कुछ जोड़ रही है परमेश्वर ने जो कहा. तो एक तरीके से परमेश्वर ने जो मनाही की उसको बहुत बड़ा करके दिखा रही है. I can imagine her heart. You know, it's pumping against this rigid. She's frustrated. How can, I can't even touch it. That's the problem. She maximizes the prohibition. And then what does she do? Finally, she reduces the consequence. और हम उसके दिल का एहसास कर सकते हैं कि किस प्रकार से वो एकदम परमेश्वर के खिलाफ हो गई है और वो ये कहना चाह रही है कि अच्छा ऐसी मनाही कर दी है कि जिसमें मैं उसको छू भी नहीं सकती. और फिर आगे क्या करती है वो जो उसका परिणाम है, मनाही के बाद में अगर कोई काम किया गया उसके बाद में जो परिणाम है उसको वो छोटा करके दिखा रही है. That is, she says, lest you die. It's almost simply saying, death will happen. It's like a simple thing there. तो जैसे क्या होता है, नहीं तो तुम मर जाओगे. वो उस गंभीरता के साथ में नहीं कह रही हो कि अब तुम मर जाओगे. Chapter 2:16, God says, you will die dying. That's how the Hebrew goes. You will surely die. Chapter 2:16. But when woman recounts it, it's like, lest you die.
2:16 में अगर आप पढ़ेंगे तो इब्रानी भाषा में जो इस्तेमाल किया गया वो कि तुम मरते मरते मरोगे या बहुत बुरी तरीके से आप मरोगे, लेकिन यहाँ पे जो हव्वा शब्द का इस्तेमाल कर रही है मरने के लिए, हाँ कि तुम मर जाओगे, बहुत ही हल्के तरीके से इस्तेमाल कर रही है। So when man doesn't want God, what does man do? अब जब मनुष्य परमेश्वर को नहीं चाहता, उसकी चाहत नहीं होती, तो क्या करता है? He creates religion. तो वो धर्म बना लेता है। And when you remove the covenantal God from your religion, जब आप अपने धर्म से, अपने मजहब से परमेश्वर को हटा देते हैं, this living true God who has revealed himself in the pages of the Bible, जिस जीवित परमेश्वर ने बाइबल में अपने आप को प्रकट किया है, what do is you maximize prohibitions. जब आप उसको हटा देते हैं तो होता ये है कि आप जिन चीजों की मनाही करनी होती है उनको बहुत बड़ा करके आप दिखाते हैं। Notice every religion, I include Christianity because there are forms of Christianity which look like religion. Every religion maximizes prohibitions. That is, you do this, you do that, you don't do this, you don't do that. You go there, you come here, you should do this at this hour of the day, you should not do this at this hour of the day. You can eat that, you don't eat that. It maximizes prohibitions. तो आप चाहे किसी भी धर्म को उठा लीजिए, किसी भी धर्म की आप बात करें, मसीहत की भी, मसीहत में बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे इसके अलग अलग झुंड हैं, और सब ये कहते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये इस समय करना चाहिए, ये उस समय करना चाहिए, ऐसा पहन सकते हो, ऐसा नहीं पहन सकते हो, ऐसा खा सकते हो, वो नहीं खा सकते हो। तो आप देखेंगे कि मनाही को बहुत बड़ा करके सारे धर्मों में दिखाया जाता है। So when prohibitions are maximized, इसलिए जब जिन चीजों की मनाही है उनको बहुत बड़ा कर दिया जाता what है, happens? तो होता क्या है? The sense of the consequences reduce. तो परिणामों की, यानी कि अगर जिन चीज पाप का जो परिणाम है उसका जो एहसास है वो अपने आप कम हो जाता है। That is, you see, if I sinned, I can do something about it and get away with it. क्योंकि आपके अंदर ये विचार आ जाता है कि अच्छा अगर मैंने पाप किया तो मैं इसके लिए कुछ कर लूंगा, और इस करने के कारण पाप का जो प्रभाव है उसको मैं कम कर लूंगा। In the early Catholic traditions, there was something called as the sale of indulgences, which were the certificates which you could buy prior from the church and keep it so that in case you sin, your sin is still covered. रोमन कैथलिक करके मसीहत में एक बड़ा संप्रदाय है, मसीहत का, अपने आप को वो भी मसीह कहते हैं। पुराने जमाने में होता ये था कि वो लोग एक प्रमाण पत्र बेचते थे कि अच्छा अगर तुमको लग रहा है कि तुम भविष्य में पाप करोगे तो पहले एक खरीद लो, और उसके हिसाब से तुम पाप करोगे तो तुमको वो पाप लगेगा नहीं, पाप अपने आप से क्षमा हो जाएगा। What does religion do? They keep God at a distance. धर्म क्या करते हैं? धर्म जो है वो ईश्वर को, परमेश्वर को बिल्कुल दूर रखते हैं। That is, the heart of God is at a distance. कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर का दिल, परमेश्वर जो है वास्तव में वो बहुत दूर होता है। Everything is a compliance. बाकी सब कुछ जो है वो आज्ञा मानने वाली बात होती है। I tick all the boxes, right, and I am done. I'm arrived at moksha. जिन चीजों की सूची, जिन चीजों को करना चाहिए उनकी सूची में मैं टिक मार लेता हूं कि हाँ ये सब तो मैंने कर लिया, इसका मतलब कि हाँ अब मैंने मुक्ति प्राप्त कर ली। True religion is love. सच्चा धर्म जो है वो प्रेम है, And by no means romantic love. Not going there right now. रोमांटिक तरीका का प्रेम नहीं, Love from God. परमेश्वर का प्रेम। True religion is a relationship with the Creator. सच्चा प्रेम जो है, सच्चा मजहब जो है वो अपने सृजनहार के साथ में एक रिश्ता है। A relationship where it doesn't depend on how you perform. ये एक ऐसा रिश्ता होता है जहां पे ये रिश्ता इस बात पे निर्धारित नहीं होता, इस बात पे निर्भर नहीं करता कि आप कैसा जीवन जी It रहे doesn't हैं। depend on what you wear. वो इस बात पे भी निर्भर नहीं करता कि आप कौन से कपड़े पहन It रहे हो, doesn't depend on what you eat. क्या खा रहे हो, इस पे भी निर्भर नहीं It करता। depends on your heart positioning, disposition towards who God is. वो तो सिर्फ इस बात पे निर्भर करता है कि हमारा दिल परमेश्वर के प्रति कैसा है, हमारे दिल की हालत परमेश्वर को लेकर के कैसी है। It depends on your loyalty to who God is. परमेश्वर कौन है उसके प्रति हमारी कैसी वफादारी है, इस बात पे सच्चा धर्म निर्भर करता है। Loyalty to his love. उसके प्रेम के प्रति हमारी कैसी वफादारी है Eve उस पे निर्भर is करता at a है। distance from God. Eve is at a distance from God.
हव्वा जो है वो परमेश्वर से काफी दूर हो गई है। And when she's at a distance from God, she cannot see the goodness of God. चूंकि वो परमेश्वर से दूर हो गई है, इसलिए परमेश्वर की भलाई को देख नहीं पा रही है। Which means she can't see the love of God. इसका मतलब ये है कि वो परमेश्वर के प्रेम को भी नहीं देख पा Love रही being है। the primary nature of God. परमेश्वर तो प्रेम जो है वो तो परमेश्वर का सबसे सबसे केंद्रीय गुण है। John Calvin said, and surely once we hold God's word in contempt, we shake off all reverence for him. जॉन कैल्विन कहते हैं कि अगर हम परमेश्वर के वचन को ही बहुत हल्के में लेते हैं तो हम परमेश्वर का आदर बिल्कुल नहीं कर For पाएंगे। Adam would never have dared to oppose God's authority unless he had disbelieved in God's word. आदम तब तक परमेश्वर के अधिकार से बाहर नहीं जा सकता था जब तक वो परमेश्वर पर खुद अविश्वास ना करता। Here indeed was the best bridle to control all passions, the thought that nothing is better than the practice of righteousness by obeying God's commandments. Then that the ultimate goal of happy life is to be loved by God himself. और यहाँ पे एक ही बात जो है वो उनको इस खतरे से बचा सकती थी कि धार्मिकता सिर्फ इस बात से नहीं आती कि वो परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे, बल्कि इस बात से आती है कि वो परमेश्वर के द्वारा प्रेम किए जाते। So what happens to Adam? Therefore Adam, Calvin says, carried away by devil's blasphemies, as far as he was able, extinguished the whole glory of God. और इसलिए हुआ ये कि आदम जो है वो जितना दूर किया जा सकता था परमेश्वर से उतना दूर हो गया और परमेश्वर की महिमा जो है उसकी नजरों से ओझल हो गई। But the second man, Adam, and I will develop the gospel aspect as we proceed through this chapter, but let me just mention an end. The second man, Adam, लेकिन दूसरा मनुष्य आदम kept his focus on the Father. उसने अपने ध्यान को परमेश्वर पर लगाए रखा, पिता पर लगाए रखा। He was tempted too. उसकी भी परीक्षा हुई। He was tempted to look at God from a distance. उसकी भी परीक्षा हुई कि वो परमेश्वर को दूर से निहारे। He was tempted to do compliance and not relationship. उसकी भी परीक्षा हुई कि वो सिर्फ आज्ञाकारिता वाले चीज पर जोर ध्यान दे, प्रेम पर नहीं। But he trusted God. लेकिन उसने परमेश्वर पे भरोसा He किया। trusted the goodness of God. परमेश्वर की भलाई पे भरोसा Jesus किया। said, "It is my food to do the will of the Father." प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा खाना तो यही है कि मैं पिता की इच्छा को पूरा करूं। But this time at the tree, an obedient second man, Adam, लेकिन अब यहाँ पे दूसरा मनुष्य जो है एक पेड़ के पास में जो आज्ञाकारिता कर रहा है, will have his life terminated. अब इसी आज्ञाकारिता के कारण उसका जीवन जो है वो खत्म होगा। He does not flourish वो as फलता we see फूलता the नहीं है। cross. जैसे कि हमने देखा था कि पेड़ के पास में पेड़ के संबंध से जो आज्ञा मानने के कारण फलना फूलना था वो यहाँ नहीं हुआ। But we flourish in him. लेकिन हम उसमें फलते फूलते He हैं। shows us what God and man relationship should look like. मनुष्य और परमेश्वर का रिश्ता कैसा दिखना चाहिए, कैसा होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिखाया। He shows us how we need to detest sin for every kind that there is. और उसने हमें यह भी दिखाया कि पाप के जितने भी प्रकार हैं उनसे हमें किस प्रकार की नफरत करनी And चाहिए। he shows us how to love the Lord the Father. और उसने ये भी दिखाया कि एक पिता के रूप में परमेश्वर से कैसे प्रेम किया जाना चाहिए। Thank you for sitting with me through this. As I said, I don't have a preacher's satisfaction, but I hope I opened up some parts of this passage to you so that you could mull over it and think about it and bite into it. We will go through this chapter together. There's a long way to go in this chapter. Thank you. शुक्रिया बड़े धीरज के साथ में मुझे सुनने के लिए। जैसा मैंने कहा कि इस संदेश को जिस प्रकार से आपके सामने रखना चाहिए था वैसे नहीं रख पाया, लेकिन जिस प्रकार से हम धीरे धीरे इस अध्याय में आगे बढ़ेंगे, मैं इस बात का विश्वास करता हूं कि हम सही तरीके से परमेश्वर के वचन को समझ पाएंगे। तब तक आप जो आपके सामने लाया गया है उस पर